आपको इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमाल का है और आप हमेशा सरप्राइज करते हैं। सिंपल सी चीज है कि मैं अच्छे इंसानों के साथ काम करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, दैट्स इट, आई गो अहेड विद इट। It's got like a very North Indian tadka as well. How do you blend the two sensibilities? I think I've been blessed to have the best of both worlds. I grew up in Mumbai, so I was exposed to several cultures growing up. So it was, and at home I I was raised as a Tamilian. I used to watch Tamil films with my mom, Malayalam films with my dad. I used to watch, Marathi films, Gujarati films. I had that sort of exposure growing up. Many times I think the stars, Bollywood, I think it is also used as a distraction, ये especially तो media. वो दो बड़ी चीजें हैं हमारे देश में, आप पहले ही भूल चुके हो, क्रिकेट और सिनेमा। ये सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा दिखता है, और इसके बारे में लोगों को बात करके अच्छा लगता है। So guys, thank you first of all for your time and आयुष्मान, मेरा पहले आपसे सवाल ये होगा कि आपको इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमाल का है और आप हमेशा सरप्राइज करते हैं, आप डिसाइफर कैसे करते हैं कि that this is like a genuine sort of observation and with more substance to it and not merely like a rhetorical statement, because everyone associates this with you now. ये डिसाइड करना ऑफ कोर्स आप अपनी इंट्यूशन से ही जा सकते हैं, और अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करते हैं कि क्या कितना रेजोनेट करता है। एट द सेम टाइम कभी कभी जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, आनंद राय सर से मेरा एक 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 लगाव है। अनिरुद्ध को मैं शुभ मंगल सावधान से जानता हूँ। तो एक एक एसोसिएशन हो जाती है। आप मुझसे व्हेनेवर आई क्रिएटिवली एसोसिएट विद माई सेल्फ और कोलैबोरेट विद समवन, तो Right. उस इंसान को जानना, उसकी कोर समझना बहुत जरूरी है। अगर वो मेरे समझ में आती है या कुछ सेम्बलेंस होती है मेरी कोर और उनकी कोर में, सो सो वी गो अहेड विद इट। तो एक सिंपल सी चीज है कि मैं अच्छे इंसानों के साथ काम करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, दैट्स इट, आई गो अहेड विद इट। Anirudh, you're from Tamil Nadu? No, I'm from Mumbai only, but he's a Okay, Tamil, but I'm a Tamil. Yeah, all right. mother tongue is Tamil. So how do you just blend the two sensibilities? Because I think Tamilians, for example, they have an amazing command over the especially the technique, and they're completely, I think, cinema lovers to the next level. And what we see in the promo so far, it's got like a very North Indian tadka as well. How do you blend the two sensibilities? I think I've been blessed to have the best of both worlds. I grew up in Mumbai, so I was exposed to several cultures growing up. So it was, and at home I was raised as a Tamilian. So the exposure in terms of the kind of cinema I've watched over the years. I used to watch Tamil films with my mom, Malayalam films with my dad. I used to watch, Marathi films, Gujarati films. I had that sort of exposure growing up. So that has really come in handy now, when I think about it. So that really helps me. And plus, spending about 10 years with Anand sir has also given a lot of, given me a lot of understanding of, how Hindi cinema also works. Absolutely. Okay, now Ayushman, I'll just read out a couple of dialogues from the promo. लड़ना मेरा काम है, शौक नहीं. And कल पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई थी मेरी मेरी फोटो खींचने के लिए, और आज मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं. ना कल मैं किसी को जानता था, ना आज मैं किसी को जानता हूँ. When you hear them at the first instance, you feel like these are like regular statements, but they are having layered meaning to it. Both the statements. Do you enjoy this sort of writing? When you get something which is having something that can have like a larger connotation, especially लड़ना मेरा काम है, शौक नहीं. This is a beautiful, I think, statement in a way. This is the first time playing an action superstar in the film. एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर एक्टर है उसका शौक ये लड़ना हो नहीं सकता, नहीं तो वो फाइटर होता, एमएमए फाइटर होता, एक्शन हीरो नहीं होता। एट द सेम टाइम ये पिक्चर लेयर्ड भी है, क्योंकि इसमें फिल्म के अंदर फिल्म शूट भी हो रही है एक तरीके से। दो तरह के पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है, पब्लिक का पर्सपेक्टिव, मल्टी पर्सपेक्टिव है, इनफैक्ट मीडिया का पर्सपेक्टिव, मीडिया ट्रायल भी चल रहा है इस पिक्चर के अंदर। जो भी आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में हो रहा है इंडस्ट्री वालों के साथ या मीडिया में जो हो रहा है, पब्लिक का परसेप्शन, सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। सो वल्नरेबिलिटी दिखाई गई है एक सुपरस्टार की, अगर एक सिचुएशन में फंस जाता है, वहां से ये लाइनें आती है कि मैं असली जिंदगी में लड़ना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, लड़ना मेरा शौक नहीं है, काम ही है सिर्फ। और पहली वाली में चीज, क्योंकि सुपरस्टार एक आइसोलेशन, एक बबल में रहते हैं, कि ना कल किसी को जानता था, ना आज किसी को जानता हूं।
वो बस अपने आसपास के लोग, इंडस्ट्री के लोग उन्हीं को जान के रह जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अप्रोचेबल हो नहीं सकते आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल। तो ये एक डबल एज सोर्ड हो जाती है एक स्टार की जिंदगी में, जो पहली बार दिखाई गई है शायद पर्दे पर। राइट, जयदीप का एक आई थिंक बहुत ही कमाल का एक लाइन है कि जो तुम्हारी फिल्में देखने आते हैं, जिसे तुम अपनी कमाई समझ रहे हो, प्यार है हमारा जो हम ही देते हैं अपनी मर्जी से। इट इज सो रिलेटेबल बिकॉज वी हैव वी हैव हर्ड दिस लाइक सो मेनी टाइम्स, इन द सेंस कि दैट वी हैव मेड यू द स्टार्स एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक एज इफ दैट स्टार्स या एक्टर्स तो कुछ करते नहीं है। Do you enjoy when the statements are coming from say real life, from maybe like a very near real life? Do you enjoy that in a way? दिस होल सीन इज सो रिफ्रेशिंग। Hmm. जब जयदीप अलावत का कैरेक्टर बोलता है सुपरस्टार को पकड़ के कि हमने तुम्हें बनाया है, Hmm. हम जो हम बोलेंगे वो तुम करोगे, और अपनी मर्जी से तुम्हें हमें दिया है, हमने दिया है तुम्हें। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो आएगी पब्लिक में, क्योंकि वो पैसा खर्च के आपकी पिक्चरें देखते हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन एट द सेम टाइम एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि आपने बहुत मेहनत की यहाँ पहुंचने के लिए, आपने अपने आप को मतलब एक हर एक कैरेक्टर में ढाला है, उस तरह की फिल्में चूज की हैं जो पब्लिक तक पहुंच पाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मल्टी पर्सपेक्टिव दिखाया गया है इसके अंदर, एक स्टार का पर्सपेक्टिव है, एक पब्लिक का पर्सपेक्टिव है, तो दोनों लोगों को मजा आएगा देखकर, इंडस्ट्री वालों को भी और बाहर के लोगों को भी। और ये है एक बाद बाद में तो पब्लिक पे बात पहुंच जाती है ना कि आपकी पिक्चरें पसंद की जा रही हैं, आपको पसंद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। एक हद तक आप कोशिश कर सकते हैं एक सब्जेक्ट चूज करने की, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी क्राफ्ट से लेकर कितना अर्नेस्ट हैं, कितनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। एंड में तो हाउ इट रेजोनेट्स विद पब्लिक, वो उन पर डिपेंड करता है। राइट, और न्यूज न्यूज एंकर को भी हमने सुना, वो मुझे कुछ ध्यान में आ गया, सलमान कहाँ हैं आप? मुझे कोई ध्यान। अनिरुद्ध कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। आपने ऑडिशंस लिए हैं न्यूज एंकर्स की? नहीं, अच्छे एक्टर है वो। हाँ, वो मतलब एक एक पर्सपेक्टिव है उस तरफ का भी। हमने ये नहीं बोला है कहीं कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा बायस कभी फिल्म में हमने दिखाया नहीं। एवरी सॉर्ट ऑफ स्टोरी हैज अ लेयर। इफ यू टेल द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, there will be a layer of the patients also, their families also. Similarly, if you tell the story of a superstar, there will be that layer of the public, the media, because that's the life they live. So it is important for us to cover everything in that sense. So if it's a story of a superstar, yes, that entire angle is there in the film. और जो होता आया है, we are merely a product of the society. So whatever we are seeing, we're just showing. That's pretty much it. Right, no, but I think many times I think that the stars, the Bollywood, I think it is also used as a distraction. बहुत बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, लेकिन बॉलीवुड को लगता है कि दैट जो ऑब्सेशन है वो थोड़ा सा कुछ एट टाइम्स इट्स टू मच, ये स्पेशली तो मीडिया। वो दो बड़ी चीजें हैं हमारे देश में, आप पहले ही भूल चुके हो, क्रिकेट और सिनेमा। ये सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा दिखता है, और इसके बारे में लोगों को बात करके अच्छा लगता है।